Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss scalar product of two states. Suppose we have two states. Let the first state is psi m and second state is psi n. And the scalar product of these two states is represented by this notation. So it is defined as integration of psi m star psi n into dv. सो इसका मतलब यहाँ पे ये है, अगर वी आर डूइंग द प्रोडक्ट ऑफ साई एम विद साई एन, तो साई एम का हमने स्टार लेना है और साई एन को हमने एज सच लिख देना है. दिस इज कॉल्ड एज और डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, टू स्टेट्स. सो नाउ वी विल डिफाइन हियर प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. अगर बच्चों हम इसकी बात करें, जैसे हमने अभी डिफाइन किया साई एम कॉमा साई एन, ये क्या होगा? दिस इज साई एम स्टार साई एन इंटू डीवी. ओके. और अगर हम बात करें बाय टेकिंग इट्स कॉन्जुगेट, हम क्या लिख सकते हैं? साई एम साई एन का स्केलर प्रोडक्ट और उसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट ले लिया, तो यह क्या होगा? साई एम star raised to power one more star, which means the जो हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लिया इसका, एंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई एन. और हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ी है लोअर क्लासेस में, ए स्टार रेज्ड टू पावर सेकेंड स्टार विच इज सिंपली इक्वल टू ए. तो ये हमारा क्या बनेगा? दिस विल बिकम साई एम साई एन स्टार डी वी. और यहाँ फिर मैं इसको रीराइट करके लिखूं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज साई एन स्टार इंटू साई एम डी वी. अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूं और अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई एन विद साई एम, तो हमारे पहले जो स्टेट क्या है? दैट इज साई एन. तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज साई एन स्टार इंटू साई एम इंटू डी वी. तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 and 2 we can write down, from 1 and 2 we get what we can write down. We can write down psi m psi n star, which is simply equal to psi n psi m. So next is norm of a state. Clear? So what is the meaning for the norm of a state? So it is represented by this representation, and which is equal to the square root of the scalar product of psi with itself. Means we will firstly find out the scalar product of psi with itself, and then we will take its under root, and it will be called as the norm of the state. And अगर हम साइड में लिखें what is the scalar product of psi with itself, this is simply equal to psi star psi into dv. So हमारा norm क्या है? It is the under root of the scalar product of psi with psi. Clear? Norm, this magnitude for the norm is always greater or equal to 0. Clear? And if your psi wave function is 0, then its norm is 0, otherwise it is greater than 0. And if we define, if हम ऐसे लिख लेते हैं, if the norm of a wave function or a state is equal to 1, it means that under root of scalar product of psi with psi is 1. So taking square on both of the sides, we can write down this one, and this is what? This is psi star psi dv simply equal to 1. तो इसका मतलब ये हुआ, if norm of a state is 1, it means that this wave function is normalized. We have already studied the definition of the normalization. हमने दो चीजें पढ़ी थी, normalization and दूसरा orthogonal. If the psi star psi is 1, then it is called as the wave function is normalized. Otherwise it is, if it is 0, then it is called as clear. So now next is what? Next is Schwarz inequality.
So next is Schwarz inequality. So now we will discuss what is the meaning for the Schwarz inequality. According to Schwarz inequality, the absolute value of the scalar product of two wave functions or the two states is less or equal to the product of the norm of states psi1 and psi2. मैं इसको अगर बच्चों मैथमेटिकली लिखूं, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. So what is the definition? So the definition is, it states that the absolute value of the scalar product of two states, let the states are psi1 and psi2, is less than or equal to the product of the norm of psi1 and psi2. अगर बच्चों इसको हम मैथमेटिकली लिखें, सो ये हमें क्या कहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स psi1 एंड psi2. स्केलर प्रोडक्ट क्या है हमारी, psi1 psi2, और मॉडुलस मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, that is always lesser equal to the product of the norms of psi1 and psi2. So this is what? This is the norm of psi1 and this is what? Norm of psi2. तो बच्चों हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है that the absolute value of the scalar product of two states psi1 and psi2 is always lesser equal to the product of the norm of states psi1 and psi2. So हम इसका प्रूफ करते हैं. So now suppose we have two states. Let suppose that two states are there. States are psi1 and psi2, and we define here the linear combination of the psi1 and psi2, which is equal to psi1 plus lambda psi2. Clear? So we have defined another wave function which is the linear combination of the two wave functions psi1 and psi2. So where हम लिख देते हैं साइड में, where lambda is a real number, वो हमारा क्या है, एक रियल नंबर है. अगर हमारा ये जो नया वेव फंक्शन जो हमने साई ले लिया विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi1 एंड लैम्डा psi2, तो हमने ऑलरेडी बच्चों बोला है द norm of a wave function is always greater or equal to 0. इसका मतलब जो साई है उसका जो नॉर्म है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल टू 0. और मैं अगर यहाँ पे साई की वैल्यू रख दूं, साई इज व्हाट, दिस इज psi1 प्लस लैम्डा psi2 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. और अगर हम देखें अभी हमने जो नॉर्म की डेफिनेशन बताई थी, दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई विद इटसेल्फ. क्लियर? तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हमने लास्ट पेज पे लिखा था psi1 प्लस लैम्डा psi2, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. अगर हम इसको एक्सपैंड करें नॉर्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ psi1 प्लस लैम्डा psi2 with psi1 plus lambda psi2, and this term is greater or equal to 0. So now next step is what, scaling both the sides, we get what we are getting. तो हमारा ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा. So this is what, psi1 plus lambda psi2 comma psi1 plus lambda psi2 which is greater or equal to 0. और अगर हम इसको डिफाइन करें फ्रॉम द डेफिनेशन, तो ये क्या बनेगा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. सो ये होगा psi1 प्लस लैम्डा psi2 स्टार इंटू psi1 प्लस lambda psi2 into dv which is greater or equal to 0.
क्लियर? तो बच्चों इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद हम देखेंगे इसमें कितनी हमारे पास टर्म्स आएंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा खोल के लिखें तो ये क्या बनेगा, साई 1 स्टार प्लस लैम्बडा साई 2 स्टार और साथ में आएगा साई 1 प्लस लैम्बडा साई 2 dv ग्रेटर इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इधर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो टोटल हमारे पास 4 टर्म्स आएंगे। सो द फर्स्ट टर्म विल बी साई 1 स्टार साई 1 dv प्लस सेकेंड टर्म आएगी साई 1 स्टार इंटू लैम्बडा साई 2 इंटू dv प्लस थर्ड टर्म इज लैम्बडा साई 2 स्टार साई 1 dv plus last term is lambda square psi 2 star psi 2 dv greater or equal to 0। और अगर हम इस टर्म्स को एक्सपेंड करके देखें तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ साई 1 विद साई 1। मतलब अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखें, दिस इज व्हाट, this is the square of the norm which is equal to psi comma psi which is equal to psi star psi dv। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ साई 1। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द नॉर्म ऑफ साई 1 और ये वाली टर्म, इनमें दोनों में से हमारा लैम्बडा हमारा क्या आ गया बच्चों, कॉमन आ गया, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, साई 1 स्टार साई 2 प्लस साई 2 स्टार साई 1 और ये कॉमन आ गई इंटू dv प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ये हमारे क्या है साई 2 नॉर्म स्क्वायर विच इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं एक चीज आपको और बताऊं, ये जो हमारे पास 2 टर्म्स आई हैं साई 1 स्टार साई 2 इंटू साई 2 स्टार साई 1, इसको हम थोड़ा सा रीराइट करके लिखेंगे। हमें अभी एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमारे पास ये चीज है साई 2 स्टार साई 1 इंटीग्रेशन dv। तो हम अगर इसको देखें तो बेसिकली ये वाली डेफिनेशन है साई 2 कॉमा साई 1 और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साई 1 कॉमा साई 2 स्टार। अभी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। तो हमारी पिछली इक्वेशन, सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर, देखिए हम कौन सी इक्वेशन चल रही है, अभी हमारी फर्स्ट नंबर इक्वेशन ही है ये, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो ये क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, री राइटिंग इक्वेशन 1 we get what we are getting, so we are getting psi 1 norm square plus lambda into, देखो ये जो टर्म है हमारी, दिस इज व्हाट psi 1 कॉमा psi 2, so this is psi 1 कॉमा psi 2 प्लस लैम्बडा, सेकेंड टर्म थी हमारी psi 2 कॉमा psi 1, उसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करके psi 1 कॉमा psi 2 स्टार प्लस थर्ड लास्ट टर्म है हमारी लैम्बडा स्क्वायर psi 2 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। वी हैव दिस वन। सो अगर हम बात करें इन दोनों चीजों की, इन दोनों में से अगर हम लैम्बडा को कॉमन कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आ जाएगी, दिस इज व्हाट, ये हमारे पास कोई प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट है। अगर हम इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स जो है कॉन्जुगेट, दिस इज सिंपली इक्वल टू psi 1 कॉमा psi 2 प्लस psi 1 कॉमा psi 2 स्टार, दिस इज इक्वल टू डबल ऑफ रियल पार्ट ऑफ psi 1 कॉमा psi 2 दैट वी हैव स्टडीड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द लोअर क्लासेस। तो ये हमारे क्या बनेगी, दिस इज psi 1 नॉर्म स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा रियल पार्ट ऑफ psi 1 कॉमा psi 2 प्लस लैम्बडा स्क्वायर psi 2 स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर हम देखें, दिस इज एन इनइक्वालिटी
and it is in the form of a quadratic in the form of lambda. This is what represents a quadratic equation in lambda, or this equation will have the solutions if the discriminant of this equation will have 0 value or it is negative. So this equation will have equal or imaginary roots if discriminant is less or equal to 0. So if we are talking for the discriminant for the given, let's suppose this is equation number 2, discriminant of this equation number 2 is less or equal to 0, तो इसका discriminant calculate करते हैं. Discriminant अगर बच्चों हम revise करें थोड़ा सा, suppose we have this equation ax square bx plus c equal to 0, तो इसका discriminant is what? This is b square minus 4ac. This term is quadratic in lambda square, तो ये हमारा a हो गया, ये दो टर्म्स हमारी b होगी और ये हमारा c हो गया. तो वैल्यूज रख देती हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 4 लैम्बडा स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ लैम्बडा 1 psi 1 and psi 2 minus 4a. a is what? Psi 2 norm square, and c is what? Psi 1 norm square, and this is less or equal to 0. तो ये मैं टर्म को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, तो ये क्या बना? 4 लैम्बडा स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ psi 1 comma psi 2 less or equal to 4 of psi 1 square and psi 2 square. So by cancelling 4 on both of the sides, and sorry यहाँ पे ना हमारे पास लैम्बडा नहीं आएगा बिकॉज लैम्बडा इसका पार्ट नहीं है b का, ठीक है. सो वी हैव ओनली दिस वन, सो यहाँ पे और साथ में हमारा स्क्वायर आएगा, ठीक है. b स्क्वायर माइनस 4ac हमने लगाया. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों लिखता हूँ, रियल पार्ट ऑफ psi 1 comma psi 2 इट्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू हमारा क्या आया? psi 1 norm square and psi 2 norm square. psi 1 norm square, psi 2 norm square. So now what we will do, taking square root on both of the sides, square root on both the sides, what we are getting, we get what we are getting, a real part of psi 1 comma psi 2 is less or equal to product of norm of psi 1 and psi 2, and the real part of psi 1 and psi 2 is called as the absolute value. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, absolute value of the scalar product between psi 1 and psi 2, and this is less or equal to the product of the norm of two states psi 1 and psi 2. So this is the proof for the Schwarz inequality, which is very, very important theorem. Now we will define here the definition for the uncertainty. So how to find out the uncertainty here? So the standard definition for the uncertainty, suppose we are measuring the value of some physical quantity A, its uncertainty is defined by delta A. So delta A is what? This is defined as the uncertainty in the measurement of A. So if we define this uncertainty, it is represented that it is defined as the square root of the difference of the expectation value for the A square minus square of the expectation value of the A. इसका मतलब क्या है? हमने बच्चों क्या करना है, पहले A स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और उसके बाद हमने A की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करके उसका स्क्वायर कर देना है.
एंड दोनों का डिफरेंस देख के उसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, दैट इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन फॉर द अनसर्टेनिटी। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं व्हाट इज द मीनिंग फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द ए, दिस इज सिंपली डिफाइंड एज साई स्टार ए हमारा कोई ऑपरेटर होगा साई इंटू डीवी। ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। अगर हम ए स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालें तो अब हमारा जो ऑपरेटर है वो क्या है, ए स्क्वायर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ए साई स्टार ए कैप स्क्वायर साई इंटू डीवी। सो दीज आर सम फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो इसको आप ध्यान से करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। थैंक यू।